morning, everyone. From today, I am going to start with your next chapter number 9, sequence and series. A very important concept, and as far as 30% of the chapter is concerned, I would rather say you already have done in class 10th itself. It's about your arithmetic progressions, or in short, as an AP. So the same formula for the nth term, the same idea for the sum to n terms of a sequence, that is going to be used. Then further we will be extending the idea for geometric progression, and then we'll be talking about infinite GP. We will not consider the sum of special sequences because that is now in our deleted syllabus. At the same time, if I consider the corresponding assignment, that contains lot many questions, but I am modifying and restructuring so that now on whichever chapters we are teaching sequence series, or maybe later on we have another chapter, say limits, then we have another chapter which we will have to cover. So in those chapters, I'll be taking very few limited questions from the assignment. So that will be marked and told to you so that you will not to solve each and every question. So what exactly is a sequence? A succession of numbers arranged in a definite order. So if some specific pattern is there, a certain rule is being followed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it's a sequence of natural numbers, 2, 4, 6, 8, 10, and so on. It's a sequence of positive or even integers. Similarly, say 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. So here I am focusing on the sequence of a prime numbers. So number occurring at the nth place of the sequence is called its nth term or its journal term, and it is denoted by A of n. In some of the books, it will be written as T of n. Capital T लिख देते हैं, T of n also. Sequence is said to be finite or infinite. According to the number of terms in it, they are finite or infinite. By adding the terms of a sequence, we get series. So the chapter name is sequence and series. So what is the basic difference between the two? Sequence is followed where the terms are separated by the comma. And when we are talking about a specific series, we are adding the terms of a given sequence. So series again finite and infinite as depend on the number of terms in that. So you will find your NCERT first exercise is very basic and straightforward. 1 marker direct MCQ type of a question is only possible. Consider this question. Write first 5 terms of sequence given by this rule and obtain the corresponding series. तो sequence की और series की दोनों की बात किया है. So A of n अगर 2n plus 1 दिया है, remember we need first 5 terms. So you start putting n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. Right? So that A1 n को 1 रख दिया, so that will be 3. A2 n को 2 रख दिया in this given so-called our formula, so that would be 5. And if the idea is clear, you can easily move on. और हमें पता है next 7 आएगा, next 9 आएगा and next 11. Of course you can easily verify. So A4 and A5. Right, so first 5 terms are 3, 5, 7, 9, 11. And second thing, आपसे corresponding series भी पूछा है. तो series मैंने बताया क्या करेंगे,
सिंपली इन्हें ऐसे ऐड करके दिखा दीजिए. At higher level or in fact university level we talk about the series जहां alternative terms plus minus करी जाती हैं, बट अभी हम 12th तक तो सिंपली टर्म्स को ऐड कर रहे हैं. बट पॉसिबली ऐसा भी हो सकता था 3 minus 5 plus 7 minus 9 plus 11 and so on, but that is not required even till 12th in general. So write first 4 terms, nth term is defined, and obtain the corresponding series. A straightforward question for your homework. Remember, n here is always a natural number starting with 1. So start putting n is equal to 1, 2, 3 and 4. Now we are here talking about a recurring sequence. So recurring sequence is a special type of a sequence wherein you will find there is a general formula and nth term is depending on the previous term, right? So if you check out, कह रहे हैं sequence an be defined as follows. a1 तो 1 given है, first term is already defined and then followed by a formula, और फार्मूला में साथ में क्लियरली बताया है n is greater than or equal to 2. Find first 5 terms corresponding series. तो चेक करिए. नेक्स्ट a2 क्या होगा? आप यहां इस फार्मूला में, ये मेरा बेस फार्मूला बन चुका है, n की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 minus 1 यहां 1 आ जाएगा, एंड a1 ऑलरेडी 1 के इक्वल है, सो दैट इज 3. अब जब हम a3 की बात करेंगे तो a3 क्या बन जाएगा इस फॉर्मूला से? a2 plus 2. a2 आप ऊपर निकाल चुके हैं, ये 3, so that would be 5. सिमिलरली जब मुझे a4 लिखना है, आइडिया क्लियर हो चुका है, ये बनेगा a3 is already calculated and 7. So that way you can go on writing the terms. आपसे फर्स्ट 5 टर्म्स कही थी सीक्वेंस की, तो याद रखिए a1 is to be included. तो a1, a2, a3, a4 and a5 ये बता दिया, वो आप निकाल लेंगे. एंड कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कोर्स दैट वुड बी सिंपली a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5. Substitute their values, 1 plus 3 plus 5 plus 7. So basically this is the alternative way of writing the sum of first n odd natural numbers. Before we move on, please mark your attendance, everyone. Based on this, as mentioned, exercise 9.1 बहुत सिंपल है, वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे. फर्स्ट 5 टर्म्स लिखिए, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू सॉल्व और डिस्कस एनी क्वेश्चन, वन कैन इजीली डू इट. थर्ड क्वेश्चन एक बार चलो देखिए. फर्स्ट 5 टर्म, तो a1, a2, a3 and so on. सो इनफैक्ट जो ये 2, 4, 8 फिर 16 फिर 32, दिस इज नॉट एपी. ये हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में थोड़ा
this is actually referring to one geometric progression, special type of progression. अगेन आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. सो थोड़ा सा देखने में चैलेंजिंग लग रहा है, इसीलिए मैंने इस पे फोकस किया है. आप आराम से कर सकते हैं एनी पार्ट. तो व्हेन आई एम रेफरिंग टू से A1, बस आप n की जगह 1 लिख दीजिए, एंड दैट वुड बी -1 पावर 0 5 स्क्वायर. एनी नंबर पावर 0 इज 1. टू अवॉइड एनी मिस्टेक, अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट A2, सो -1 की पावर 1 और इंटू 5 क्यूब, विच इज 5 क्यूब कितना हो गया 125. दैट्स इट. Similarly you can write down the other terms. Find the indicated terms in the following sequences. अब नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें nth टर्म दी हुई है और आपको कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बतानी है. मतलब A17 बताओ, A24 बताओ, तो हार्डली मैटर, सिंपल क्वेश्चन है. nth टर्म अगर ये है, यू नीड A17, n की जगह 17 रख दीजिए. सिमिलरली A24 आप निकाल लेंगे, A7 करना है. सो दैट्स वेरी बेसिक एक्सरसाइज. 10th क्वेश्चन चलिए देखते हैं. A20 बताना है, n की जगह 20 लिख दीजिए. दैट्स इट. सो 20 इंटू 18 बाय 23. कुछ कैंसल तो हो नहीं रहा. क्लियरली दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ऑब्वियसली सच टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 मार्कर डायरेक्ट MCQ में आ सकते हैं. अब यहाँ रेकरिंग सीक्वेंस की बात करी गई है. रेकरिंग में याद आया पिछला हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये तो समथिंग लाइक दिस. तो nth टर्म इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस टर्म्स, सो ऑन. तो अगर आप चेक करें, write the first 5 terms and obtain the corresponding series. Similar language है. क्वेश्चन 11 अगर हम देखें, A1 3 है और nth टर्म की डेफिनेशन वो बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है. और फॉर ऑल n ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया. तो n को स्टार्ट पुटिंग 2, 3, 4 एंड सो ऑन. व्हेन n इज 2, इस फॉर्मूला में n की जगह 2 रख दिया. A1 हम ऊपर गिवन होगा, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना. I will get A2. For writing A3, of course I would be requiring A2. तो उस पर डिपेंडेंसी बन जाएगी पिछली टर्म के ऊपर. When I put n is equal to 3, तो A3 बनेगा. इस फार्मूला में n को 3 रख दीजिए. A2 is already calculated above, and so on. You will be able to write down the first 5 terms. 4 ही निकालनी है. फर्स्ट टर्म तो आपको A1 गिवन ही थी. There is a very famous Fibonacci sequence. Some authors pronounce this as Fibonacci, but hardly matter. The proper word Fibonacci होता है. तो Fibonacci was a mathematician of 12th century. तो आज से 800 साल पहले उन्होंने ये बात करी थी. He gave and talked about this A1. ये देखिए A1 1 दिया है, A2 1 दिया है. A1 is 1, A2 is 1, और अब followed by this formula. तो AN is
an minus 1 plus an minus 2. So by the definition we can easily observe when I have to write a3, a1 और a2 तो गिवन ही है, इस फार्मूला से आप वो निकाल भी नहीं सकते क्योंकि n शुड बी ग्रेटर देन 2. n को मैंने 3 रखा, इस फार्मूला में 3 रखिए, सो क्लियरली यहाँ a2 आ जाएगा और इधर a1. दोनों वैल्यूज मुझे ऊपर गिवन है, 2 हो गया. क्विक आइडिया लग चुका होगा. a3 आप निकाल चुके हैं, a2 was 1 and so on. तो when I move on and ये हम आगे बढ़ते हैं, likewise this is a4 plus a3. हम nth टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, so that would be 5 and so on. So when I write down the corresponding sequence, first 2 terms मेरे पास already हैं, ये याद रखिए, 1 1. अब आइए आपकी थर्ड टर्म as 2, then 3, then 5. One can now easily able to generalize it. So what will be our next term? 8. And the next term? 12. No. 8, 8 plus 5, 13, 13 plus 8, 21. फिर इन्हें ऐड करा, वो कितना आ रहा है, 34. फिर कितना आ गया, 55, 89, 144 and so on. So this is a special and famous Fibonacci sequence. I can talk about the same for next 1 hour minimum, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट बुक्स अवेलेबल हैं. मैथ्स के लिटरेचर में फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर ही इतना रिसर्च और इतना काम है. देयर आर द जर्नल्स, जो मंथली जर्नल रिलीज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, दे ऑलवेज कम अप विद द न्यूअर एंड न्यूअर आइडियाज. पर्सन्स अराउंड द ग्लोब आर डूइंग द रिसर्च वर्क ऑन दिस. एंड इसकी अच्छा एक पार्ट इसमें रह गया, देन ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट दैट. सेकेंड पार्ट ये कह रहे हैं, फाइंड दिस वैल्यू फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो आप चेक करिए, आपको ये वैल्यू निकालनी है, राइट, फॉर n इज इक्वल टू 1. तो n को जब आप 1 पुट करेंगे, n इज 1, 1 प्लस 1, a2 बाई a1 की बात हो रही है. n को मैंने पुट करा 2, तो इट इज एक्चुअली a3 बाई a2. n को 3 पुट किया, तो अब आइडिया लगना शुरू हो चुका होगा, a4 बाई a3 एंड 4, a5 बाई a4 एंड a6 by a5 एंड सो ऑन. तो ये फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1. नेक्स्ट वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें 2. नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखें 3 बाई 2 हो रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव a4, ये a1 है, दिस इज a2, a3, a4 एंड सो ऑन. ये आ गया 1.5. फिर 4 के ऊपर आया 8 बाई 5. नेक्स्ट आया 13 बाई 8. नेक्स्ट चलो आगे सोचो क्या आ रहा होगा, 21 बाई 13. Sir, for a5 by a4 it won't be 5 by 3. 5 by 3. अच्छा वो सॉरी, वो मैंने मिस कर दिया लिखना. यस, वो एक बीच में सीक्वेंस जल्दी में, यस ऑफ कोर्स वो ऑर्डर में ही होगा, तो a5 इज 5 एक्चुअली. तो 5 बाय 3, देन 8 बाय 5, फिर 13 बाय 8, फिर 21 बाय 13, 34 बाय 21 एंड सो ऑन. बेसिक आइडिया यहाँ पर क्लियर होगा जब मैं बात करने वाला हूँ लिमिट्स के कॉन्सेप्ट की. वो आपके सिलेबस में अभी फर्स्ट टर्म में ही है.
तो यहाँ अब मैं आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर. 5 डिवाइड बाय 3 मैंने किया, ये 1.6666 एंड सो ऑन जा रहा है. नेक्स्ट मैंने 8 डिवाइड बाय 5 किया, ये एग्जैक्टली 1.6 आ रहा है. 13 डिवाइड बाय 8 किया, दिस इज कमिंग आउट एज 1.625. मैं फिर बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर अब अपने सामने खोला हुआ है एंड आई एम यूजिंग दैट. तो ये आ रहा है 1.615384 समथिंग. फिर एक और वैल्यू, चलो 34 डिवाइडेड बाय 21, ये आ रही है 1.6190 and so on. So any peculiar observation, any specific observation, what is happening? स्टार्टिंग में अगर आप नोट करेंगे तब तो वैल्यू 1 थी, फिर 2 हो गई, एकदम से डबल हो गई, फिर कम हो गई. बट लेटर ऑन नोट केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग. Increasing but slowly. आंसर आपका 1.61 के अप्रोक्सीमेटली आना शुरू हो चुका है. अगर आप अगली वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ 144 डिवाइडेड बाय 89, मैंने जब इन दोनों को डिवाइड करा है कैलकुलेटर से 1.617977 एंड सो ऑन. सो आंसर विल एक्चुअली कन्फाइंड टू द वैल्यू whose first 3 decimal places मैं सिर्फ ले रहा हूँ 618. तो 1.618, this is referred to as a very special number, which is an irrational number, very similar to pi, non-terminating, non-repeating decimal expansion. Is there anyone who knows the name of this number? 1.618 क्या कहते हैं इसे? It has given a special name in mathematics. Anyone? Golden. This is, yes, this is referred to as a golden ratio, and it is denoted by the notation phi. It has got lot many applications in our real life. In the nature, the existence of the petals in any flower that always follows the pattern of या तो 3 लीव्स होंगी या 5 होंगी या 8 होंगी या 13 होंगी, एंड इवन 144 एग्जैक्टली 89 लीव्स के फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर. रेयरली यू विल फाइंड एनी फ्लावर जिसमें 4 आपके पेटल्स होते हैं. दे डू एग्जिस्ट, बट रेयर है कि जिसके 4 पेटल हो. 99% ऑफ दी फ्लावर्स जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं बाय नेचर ये चीजें रही हैं. दे फॉलोज सच पैटर्न. इवन पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल पे ऊपर उठे होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे कांटे से जो ऊपर की तरफ, उनकी जो रोटेशंस होती हैं, उन्हें अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उनकी मैं रोटेशंस को काउंट करता हूं, दैट इज ऑलवेज फॉलोज दिस सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स. या वो 13 होंगे या 21 होंगे, उसके अंदर जो दाने दाने आते हैं अपने स्पाइरल के अंदर जो आपका पाइनएप्पल में बनता है, इट कैन नेवर बी 22, इट कैन नेवर बी 25. It is either 21 or 34 or 55 or 89. Even इससे ज्यादा. और चलो आपको एक और क्विकली बता देता हूँ, वो ये एग्जाम में नहीं आएगा, और हम तो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं. That is the main problem. The point is, in our normal human body, the golden ratio exists in lot many phases. अगर मैं बात करता हूँ अपने टीथ्स के बीच में, दांतों के बीच में जो सेंट्रल 2 दांत हमारे होते हैं टॉप वाले, अगर आपने नोटिस करा हो, कुछ आपके दांत इस तरह के रहते हैं, ये सेंट्रल का थोड़ा सा बिगर साइज आ जाता है, राइट. उसमें इसकी रेशो और इसकी रेशो हमेशा 1.618 होती है.
इवन अगर मैं खड़े होकर अपनी टोटल हाइट और फिर अपनी वेस्ट से लेकर नीचे तक रेशो निकालता हूं, दैट इज 1.618। आईज के अंदर, आपके पूरे फेस के अंदर, ईयर से लेकर नोज से लेकर हर जगह वी कैन एक्चुअली डिस्क्राइब एंड टॉक अबाउट द गोल्डन रेशियो। जो यूनिवर्स का, जो आपने देखा होगा, जो हम कहते हैं हमारा स्पाइरल है, जो हमारा आकाश गंगा जो बोली जाती है, जो उसमें स्पाइरल फॉर्म हो रहे हैं, वहां पर जो रेशियो एग्जिस्ट होती हैं, दे आर 1.618। लॉट ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जो आज से शायद 10,000 20,000 साल पहले, गिजा के पिरामिड्स सुने होंगे आपने, इजिप्ट के पिरामिड्स, द ममी मूवी याद आ जाएगी। सो उसमें जो पिरामिड्स की बात करी गई है, द पिरामिड्स की जो रेशो है, उनका जो बेस की बात करी जाए, लेंथ टू ब्रेड्थ, दैट इज एक्चुअली 1.618, because they were the great mathematicians, those who knew the value of this great number as a golden ratio. I have read a book सिर्फ गोल्डन रेशियो एंड फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर है, मोर देन 400 पेजेस की बुक है, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट वंडरफुल रिलेशंस। यस, so there is only one such series in the world? No, actually no, there are the Lucas series, और अभी ये किंशुक ने बोला है। ओके, आई गिव यू दी सीक्वेंस जो किंशुक अपने नाम से बना रहा है, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस है, किंशुक सीक्वेंस। किंशुक, गिव मी एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर बता दो। सर 2 and 3। 2 and 3 तो बहुत नजदीक वाले ले लिया, उससे तो फिर बहुत बेनिफिट मिलेगा नहीं। मान लो आपने कहा, लेट मी से 2 and 7, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप चेक करो, इन दोनों को ऐड करो, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 9। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करो, 16। नेक्स्ट क्या आएगा? 25। and so on. Find out the ratio of n plus 1th term to the nth term. That will be again converging to 1.618 always. Why to start only with a single digit number? कोई भी दो नंबर ले लो आप, इंक्रीजिंग में होने चाहिए। मान लो 11 और किसी ने कह दिया 27, 11 27 फॉलोड बाय द सेम रूल, फिर आप उसकी लार्जर टर्म को उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड करो, दैट विल बी ऑलवेज 1.618। एनीवे, लेट मी कम बैक टू 11th क्लास। 1.618 क्यों आती है? दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये एनसीईआरटी और रेगुलर सिलेबस में नहीं मिलेगी। So that you need to check out why it is happening. There is a concept of limits. It can be justified also कि ये हमेशा इसी के इक्वल क्यों आती है। फाई ही एक ऐसा नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं तो वो उस नंबर के +1 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं फाई की जगह अपनी सिंप्लिसिटी के लिए x लिख दूं तो x² - x - 1 इज 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट जो है क्या आएगा? -b ± रूट b² - 4ac / 2a। तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर में, तो -1 + √5/2। ये वैल्यू आप √5 2.236 होता है, ये वैल्यू आप निकाल कर देख लीजिए। इट्स अ गोल्डन रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। पाइथागोरस के अपना जो उन्होंने अपना एक सिंबल दिया था मैथमेटिकल इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटागन, उसमें जो डायगोनल्स की साइड्स की रेशियोज हैं, दे ऑलवेज फॉलो दिस रूल ओनली, राइट। तो अब स्टूडेंट क्लास लीव करना शुरू कर देंगे क्योंकि ये चीज सिलेबस में नहीं है। सो लेट मी कंटिन्यू विद दिस सिलेबस क्योंकि हमें नंबर चाहिए। Okay, so next idea is about the progressions. So sequence which follows a certain pattern, they are referred to as the progression.
अब एक कोई पैटर्न मिलना चाहिए, जैसे अब हमने अभी ऑलरेडी टर्म यूज कर ली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो एपी में एक डेफिनेट पैटर्न होता है कि पिछली टर्म से कैसे नेक्स्ट टर्म कनेक्टेड है। तो इफ देयर इज अ सर्टेन स्पेसिफिक पैटर्न, then we get the sequence as a progression. Coming to AP now. Check this out. अब ये कई चीजें बहुत क्विक एंड कॉमन है। आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग 10th में आपको करा हुआ है ये सब। इट इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन differs from its preceding term by a constant, और उस constant को हम कहते हैं common difference denoted by small letter t। और AP में फर्स्ट टर्म को A से डिनोट कर दिया और nth टर्म an लिख दो या t of n लिख दीजिए। Check this out. Show that the sequence defined by Tn plus 1 is an AP. Find the common difference. Tn आपको ये दिया हुआ है। One way, start writing term 1, term 2, term 3, term 4. These are sufficient. Term 1 कितनी आ गई? n की जगह 1 रख दिया। ये तो हम देख ही चुके हैं। 11 and then 14, Common difference. 17, So this is 11, this is 14, 14, next is 17. 17। तो आप चेक करिए क्लियरली 8, 11, 14, 17 so on. This is forming AP. Yes, sir. Yes, 8 and common difference as 3. किन्हीं को भी आप चेक कर लीजिए, that is 3. In fact, there is a result जो I'm sure आपने पढ़ा होगा 10th में ही। एक AP के लिए nth टर्म हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक Yes, में कभी नहीं हो सकता। और And for some it is quadratic. यस, और जो ये कोफिशिएंट है इस लीनियर का n का कोफिशिएंट, दिस इज ऑलवेज कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म ऑफ एपी, तो एपी याद करिए इस तरह से हमने ली थी ना, a प्लस डी, a प्लस 2d करते 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 nth टर्म बेसिकली जिसे लास्ट टर्म कहा गया है ये आ गया nth टर्म। सो इन आवर नॉर्मल नोटेशन हमने ये यूज करा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी, a प्लस 2d करते करते ये आ गया जनरलाइजेशन से nth टर्म। सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, क्विक चेक अपने आप पढ़कर देखिए। सो अगर हम किसी भी एपी की टर्म्स में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, नई सीक्वेंस जो बनेगी वो भी एपी है। कांस्टेंट अगर आप ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट न्यू सीक्वेंस विल बी अगेन एपी। इवन अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से तब एपी है। फिर आप डिवाइड कर दो नॉन जीरो नंबर से, द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन विल बी अगेन एन एपी। तो वो जो कांस्टेंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा ना? Why that will be the common difference?
आपके पास, चलो एक मिनट एग्जांपल से आप अपने आप ही आंसर दोगे। मान लीजिए मैंने एक एपी ले लिया 3 7, अगली बोलो जरा क्या है, क्या आएगी नेक्स्ट टर्म? 11 नेक्स्ट 15 एंड सो ऑन। चलो अगर आप इसमें +2 कर देते हैं, कितना आ गया ये? 5 9 13 17 9 नेक्स्ट कितना आ गया? 13 एंड सो 17 ऑन। इसमें डी कितना था? ऊपर वाले में, नीचे वाले में डी कितना है? 4। आई होप यू हैव द आंसर। यस। कॉमन डिफरेंस विल नॉट बी चेंज्ड। अब यहां जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं ये आपके स्टैंडर्ड 10th क्लास के हैं। Show that this progression is an AP. Done with the first part. 12 minus 7 is 17 minus 12 is and all are equal to 5. Hence AP. जनरल टर्म लिखनी है A D, nth टर्म क्या हो गया? A plus n minus 1 into D, or when it is simplified 5n and then 7 minus 5. This is nth term. फिर कह रहे हैं 14th टर्म बता दो। A 14 लिखने के लिए n की जगह 14 रख दिया। Your required answer. After this question, we will have a break for 5 minutes, but you will be staying in the classroom only. Show that this progression is an AP. That can easily be done. तो आप चेक कर सकते हैं, A हो गया -11 and D will be, what is D here? 4 plus Can other students also participate? So -7 minus -11, और किन्हीं भी दो टर्म्स का, मैंने तो एक्चुअल में इसे सोचा था, इनका डिफरेंस देख लिया, सेम ही आएगा 4। कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर दीज। चेक करिए, अगर सीक्वेंस आपको ये दिया है, लास्ट टर्म ये दी है, तो दिस इज लास्ट टर्म, जिसे हमने nth टर्म कह दिया, और फिर an का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई, you will get your required answer. वो जो भी आ रहा है, I mean I'm not, वो उतना सॉल्व करने का नहीं है, वो आप चेक कर लीजिए। Yes sir, it is 44 right. So there is a break for 5 minutes. 11:20 हुए हैं, 11:25 पे we will resume the class. Stay here in the class. Attendance तभी एक साथ हो रही है।
Okay, so let's start with this next question, everyone. Before we move on, mark your attendance. Again, 10th में किया हुआ है. Is 319 is a term of this AP? A is 11 and common difference is 6. Let 319 is... Yes, it is 78th. Okay. nth term हमने अगर ये assume कर लिया कि चलो ये इसकी nth term है, इसका मतलब A plus n minus 1 into D is 319. Substituting the values and simplifying, one can easily note this is 6n minus 6 और इधर ये 319 में से 11 माइनस कर दिया तो 308 आ गया. वो आप 6 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं ऑफ कोर्स. तो वो देयर आर लॉट मेनी वेज टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो ये कितना आ जाएगा 314. डिवाइड करिए. There is some mistake क्या in my calculation? Sir, I did a mistake. I just know. Yes, check it out. This is not divisible. ये 5 point something आ रहा है. N is 5 point something, which is not a natural number. याद रखिए nth term होने के लिए n must be a natural number. So what does this imply? That 319 is not the term of given AP. आप प्लीज एवरीवन मेरी कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए. हो सकता है जल्दबाजी में गलत हो जाए. अगेन 10th में किया हुआ है. Which term of this AP is the first negative term? तो सबसे पहली बात A is 30 एंड अगर मैं D की बात करूं तो ये आपका D आ जाएगा which is कितना आ रहा है -3/4. मैंने ऐसे सोचा है ये 29.25 है -30 तो ये कितना हो जाएगा -0.75 विच इज -3/4. आप 29 1/4 में LCM लो और सॉल्व कर लो, वो एक ही बात है. तो A मेरे पास है, D मेरे पास है. अब कह रहे हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वही मैं कह देता हूं लेट A and B first negative term. What does that mean? नेगेटिव होने का मतलब ये होता है लेस देन 0. कॉमन सेंस है. तो an लेस देन 0 और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू एंड d की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए. इट हैज टू बी लेस देन 0. रिमेंबर n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. तो बस इसे LCM लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं. 120 -3n and minus minus plus 3 is less than 0 or 123 is less than 3n or
n के ऊपर ग्रेटर देन आ गया 123/3 और n is greater than 41. What is the answer? 42nd term. Yes. n एक नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 41 आ गया, तो ऑफ कोर्स पहली वो टर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी है, तो क्लियरली n विल बी 42. तो 42nd टर्म जो है that will be the first negative term. What is that term? वो आपसे पूछा नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी टर्म है एक्चुअली? A42. दिस इज एक्स्ट्रा थिंग. तो A42 एक बार जरा क्विकली देखें. A प्लस 41D हो जाएगा. A प्लस सॉल्व कर लीजिए, गारंटेड ये आंसर नेगेटिव आ रहा होगा और जीरो के बहुत नियर बाय होना चाहिए, क्योंकि वहीं से नेगेटिव टर्म आनी स्टार्ट हुई होंगी. -3/4. Okay. Then in 10th itself, we did the formula for sum of n terms of AP. So if the AP is simple, A plus D, then next term A plus 2D, and so on till A plus n minus 1 into D. So we are referring to this particular sum. And this is given by these two formulas. Mainly हम ये यूज करते हैं, but depend करता है अगर last term given है nth term, then we would prefer to use first formula. तो क्या हो गया Sn का फॉर्मूला? n/2 into 2a plus n minus 1 into d. So I don't think I need to explain this. ये already हम justify इसका proof भी वैसे कर चुके हैं, but that is चलो not required from examination point of view. Very basic question is taken based on the above formula. Find the sum of, यहाँ लिखना चाहिए first 23 terms, क्योंकि formula always work with the sum of first n terms of AP. So sum of first 23 terms of AP. So 5 plus 9 plus 13 करते 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 आपसे कितनी टर्म्स ली हैं? 23 टर्म्स. तो A 5, what is D? 4. नंबर और टर्म्स 23. तो S23 का फॉर्मूला n/2. Substitute all the values. Everything is given. And simplify. Double 127. चलिए बाकी भी एक बार चेक कर लीजिए आंसर वेरीफाइड. 1127. ओके.
Find x if this sum is 148. तो क्लियरली x का मतलब यहां ये मेरी nth टर्म आपको गिवन है, a is 1, common difference is 5 and sum is 148. तो आप चेक करिए हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट। भाई आप दोनों पहले सम से अगर सोच लें तो एस एन का मतलब क्या हो गया, n/2। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ लास्ट टर्म x डिफाइन करी गई है, तो आप वो nth टर्म लास्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो n/2 2a plus n-1 into d, and this is 148. Simplify this, तो 2 RHS में आ जाएगा and n into यहाँ बचेगा 5n minus 5 plus 2 minus 3, and that is equal to 148 का डबल हो रहा है। $296। I hope the idea is clear. Sir, anything. Okay. Open the bracket. Get the quadratic equation in n. Splitting the middle term. Follow the usual method और यूनिक आंसर आएगा। दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी या फ्रैक्शन मान लो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यू श्योर n8 आ रहा है? तो इसे सॉल्व किया, आप देख लेना n आ गया 8। तो बस अब आपसे क्या करना है, x पूछा था, x तो मेरा an है विच इज a plus n-1 into d, a plus n-1 into d, so 1 plus your required answer. You need to link all the basic rules and concepts जो आपने 10th में करे हैं, और ये क्वेश्चन तो बोर्ड का 10th क्लास का ही है एक्चुअली। Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5. Very important thing, numbers lying between. Between में आप इन्हें काउंट नहीं करेंगे, तो किनका सम पूछा है? What will be that first number? 105. Multiple of 5 चाहिए, तो of course 105, 110, 115, and of course the last number 995 हो जाएगा। We already have learned the method how to find such sum. तो ये तो आपका डायरेक्ट अपना एपी के सम का फार्मूला है, बट ये याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में इसे nth टर्म कह दिया और nth टर्म के फार्मूला से a plus n-1 into d
आप सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर सम क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस an, क्योंकि ये nth टर्म अब गिवन है तो बेटर है आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n आप यहां से निकाल लेंगे। Check this out from आपकी NCERT बुक ओनली। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएंगे। फोर्थ में जैसे कह रहे हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन 200 and 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो पक्की बात है 200 के बाद 200 कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है? व्हाट विल बी दैट फर्स्ट नंबर? यस, 204। करके देखो एक बार जरा, डिवाइड 7 से हो रहा है एग्जैक्ट? 203। इट्स 203। चेक करिए, 203/7, 6 बच गया तो 63 आना चाहिए ना, तभी तो डिवाइड होगा, 7 की टेबल में आएगा। तो 203 अगर आपने सही सोच लिया, नेक्स्ट नंबर 210, 217 करते करते 400 से पहले 390s की सीरीज में होगा पक्का। व्हाट इज दैट? 399। 399। देखिए ये कैसे सोचा जा रहा है, 7 से डिवाइड करते, यहां 5 आता और रिमाइंडर 4 बचता, तो 49 होगा, तभी तो वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 399। बस अब आपसे इन नंबर्स का सम पूछा था। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो आप चेक करिए, 2 और 5 की जब मैं बात करूंगा तो 2, 4, 6 करते करते, अब यहां बिटवीन नहीं कहा है, फ्रॉम है। फिर 5 से डिविजिबल वाले 5, 10, 15। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन आपने दोनों में ऐड कर लिए हैं। कौन से हैं वो नंबर्स? 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30 करते करते अप टू 100। तो आपको जो मैंने रिपीटेड ऐड कर लिया था हटाना पड़ेगा। अब तीनों आपकी अलग अलग एपी हैं और उनके इजी फार्मूला लगा सकते हैं। समटाइम्स दिस फार्मूला 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है? n into n plus 1/2। दिस इज वेरी यूजफुल। 10th का सिंपल बात हो रही है एपी की, तो आपने ये फॉर्मूला किया हुआ है। तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला एटलीस्ट, अगर मैं बात करूं, चलो इसकी और इसकी, शायद हर एक क्वेश्चन में लगा सकता हूं। इसमें क्या हुआ, 10 कॉमन, 1, 2, 3 करते करते अप टू 10। सो 10 इंटू, बस ये क्या होगा, n+1/2। सिमिलरली यहां क्या हुआ, 5 कॉमन, 1 + 2 + 3 अप टू 20।
अब अप्लाई द सेम फॉर्मूला, n को 20 पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाएंगी। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर चाहिए, पक्की बात है 10 से 99 के बीच में होंगे। Which when divided by 4 yields 1 as remainder। 12 मुझे पता है ऐसा नंबर है जो सीधा 4 से डिवाइड हो रहा है, बट मैं चाहता हूं वो नंबर जो 1 रिमाइंडर भी दे। इसका मतलब दैट नंबर शुड बी 13। आप करो इसको 4 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर एक ये 13 सही सोचा गया, उसके बाद तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वुड बी 4 ऐड करते चलो, एंड सो ऑन टिल 90 क्या आएगा? 6। सोच लो, ऑड नंबर 97। एवरीवन चेक दिस आउट। 96 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो +1 कर दो। तो इस सीक्वेंस के सम की बात करी है, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर सम। तो एक्सरसाइज में से वी ऑलरेडी हैव दिस, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हो ही गया है। लास्ट 2 minutes टू गो। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms। सिंपल लॉजिक से अगर सोचा जाए, A1 A2 A3 अगर मैं कहूं ऐसे एक एपी थी, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या दिया है? 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, A6 A7 A8 A9 एंड A10। बस उसके बाद कह रहे हैं टू शो 20th टर्म इज -112। तो A पता है मुझे, सिर्फ D की रिक्वायरमेंट है यहां, तो D कैसे निकलेगा? दिस इज एक्चुअली सिंपल कॉमन सेंस। मैं इस A6 से A10 में अपनी तरफ से A1 A2 A3 A4 A5 ऐड कर देता हूं। नेक्स्ट एज इट इज लिख रहा हूं, कलर कोड से बेटर क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से ये ऐड करा है A1 से A5। अब जो चीज मैंने ऐड करी है हटानी भी तो पड़ेगी फॉर बैलेंस, बट व्हाई इट इज बीइंग डन? क्योंकि फॉर्मूला जो है वो आपका हमेशा फर्स्ट n टर्म से शुरू होता है, तो इट रिप्रेजेंट S5। और ये क्या बन गया अब? A1 से A10 तक S10 S10 माइनस S5। अगर ये चीज आप कॉमन सेंस से लॉजिकली डायरेक्ट सोच पा रहे हैं, दैट इज ओके। आपको ऊपर वाले दोनों स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 into S5 इज S5 इधर आकर प्लस हो जाएगा,
Now you substitute the values as 5 का मतलब n by 2 2a plus n minus 1 into d. d ही तो अननोन है जो मुझे निकालना है, और s10 का मतलब n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. You will get a simple linear equation. Solve it to get the value of d. d आ गया, a20 can easily be justified. So I am sure the basic idea is clear. So revisit and revise quickly your class 10th का AP, क्योंकि वो कई चीजें कॉमन मिलने वाली हैं. अब ये क्वेश्चन जैसे अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी 10th में कर चुके हैं. Do it in your homework. That's all for today's class. Please mark your attendance. And if you have any doubt, you can ask. Mark your attendance, and then, of course, you can leave the class. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.